Hello students, very good morning. All of you warmly welcome on this YouTube channel that has been planned to provide you online classes from ML Cambion Group of Schools. Students, nowadays we are doing fourth chapter in the book Flamingo, and it is the third video in that chapter. Let us recapitulate the story as I have already told you that the story is entertaining as well as philosophical. You will find out a metaphor of rat trap that the author highlights the human predicament of falling into the trap of temptations. Story is a very good analysis of the emotional needs of human beings that govern their behavior. Up to now in the story we have read that the story is about a poor wanderer who used to make his living by selling rat traps made out of begged material. He also took to petty stealing at times, as selling rat traps alone was not enough to sustain him. When lonely, a somber thought often crossed the rat trap seller's mind. He felt that all the comforts of life were nothing but baits set to trap human beings. Thus, he found the world to be similar to a rat trap where man and woman succumbed to temptations. One day, as he moved door to door selling his rat traps, he reached a small grey cottage and sought shelter from the owner who lived alone. This man had been a crofter at Ramsjo Iron Works. He was extremely kind to the peddler. He not only fed him porridge, but the two also smoked together and played cards. The crofter was so pleased to have a guest that he disclosed his source of income to this stranger. He showed him the 30 crore which he had got after selling his cow's milk to the creamery and had kept in a pouch hung on a nail near the window frame. The next morning, the rat trap seller took leave to his host but returned half an hour later, smashed the window pane and stole the money that the crofter had sold the previous night. He took to the road into the woods to avoid getting caught. He walked quite long and got confused by the maze of the forest paths. Dead tired and hungry, he realized that he had fallen into a trap. Suddenly, he heard the regular thumping of the hammer and realized that he was near some island. He gathered strength and walked in the direction of the sound to finally reach the Ramsjo Iron Works. He sneaked into the mill and entered the forge. He sought permission from the master blacksmith to stay for the night. Up to now, in the last class, we have read till this point. Today we shall continue the chapter. Please open your book on page number 35. Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty panes and to come in to warm themselves in front of the fire. So it was nothing unusual in it कि जो पुअर वेगाबर्न्स था जो कि अभी तक दिन भर उस फॉरेस्ट में फंसा हुआ था, अभी उसके लिए यहाँ पर इसको ग्लो ऑफ लाइट दिखाई पड़ा इस फोर्ज में, और ये बेहतर प्लेस था कि यहाँ पर वो अपने आप को आग के सामने थोड़ा सा वार्म भी रख सकता था. द ब्लैकस्मिथ glanced only casually and indifferently at the intruder.
ये जो इंट्रूडर था, ये जो न्यूकमर था, इसकी ओर जो ब्लैक स्मिथ था उसने ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया। बस उसने एक बार देखा कि हाँ यहाँ पे कोई आया हुआ है। ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड। उसने इसकी ओर एकदम, ब्लैक स्मिथ था, कहीं एम्प्लॉयड था, तो सिंपल वे में एज द पीपल लाइक हिम डू, एकदम सेम तरीके से इसने उसकी ओर देखा। विद अ लॉन्ग बियर्ड, आई मीन वो जो रेट्रेफ सेलर था, वो जैसे दिखते हैं लोग, इस तरह के लोग वैसे ही दिख रहे थे, जैसे दिख रहा था। दाढ़ी बड़ी हुई, डर्टी, रैट, एंड विद अ बंच ऑफ रैट ट्रैप्स डैंगलिंग इन द ऑन हिज चेस्ट। इसके चेस्ट पे एक बंच ऑफ रैट ट्रैप्स डैंगल कर रहा है। He asked permission to stay, and the master blacksmith nodded a haughty consent without honoring him with a single word. उस ब्लैक स्मिथ ने एक भी शब्द नहीं बोला, जस्ट उसने पेडलर ने परमिशन मांगी और मास्टर ब्लैक स्मिथ ने नोडिंग करते हुए उसको परमिशन दे दी। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग एंड द ट्रैम्प आल्सो डिड नॉट स्पीक एनीथिंग। ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप। वो यहाँ पे बातचीत करने तो आया नहीं था, यहाँ पे अपने आप को वार्म करने आया है, सोने नहीं आया। तो बस वो आराम से लेट गया। In those days, the Ramjo iron mill was owned by a very prominent iron master whose greatest ambition was to ship out good iron to the market. It is the matter of those days. ये उन दिनों की बात है जब रामजो आयरन मिल का जो मालिक था वो बहुत ही प्रोमिनेंट आयरन मास्टर था और जिसका सबसे बड़ा एम्बिशन था कि वो मार्केट में अच्छी क्वालिटी का आयरन जो है भेजे। He watched both night and day to see that the work was done as well as possible, and at this very moment he came into the forge in one of his nightly rounds of inspection. तो जो इस समय के जो रामजो आयरन ओर की जो मालिक थे वो अपनी नाइटली राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन पे आए, क्योंकि वो हर समय ही वांटेड टू इंश्योर दैट वर्क इज गोइंग ऑन इन वेरी प्रॉपर वे। नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही saw was the tall ragamuffin who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his veterans. अब जैसे ही वो उस मिल में एंटर किया, जो सबसे पहली चीज उसकी निगाहों में आई वो थी वो रैगमफिन, वो चिथड़ों में लिपटा हुआ इंसान जो कि फर्नेस के ठीक बगल में लेटा हुआ है। और चूंकि वो बाहर से आया था तो उसके जो कपड़े थे भीगे हुए थे, यहाँ पे गर्मी पा करके उसमें से स्टीम निकल रही है। और आयरन मास्टर की यहाँ का मालिक है तो इसका तरीका और ब्लैक स्मिथ के तरीके से अलग होगा, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन लेगा कि वो कौन है, कहाँ से आया है, क्यों आया है, क्योंकि वो वहाँ का मालिक है। वो कहीं कोई गड़बड़ इंसान हुआ तो ये ब्लैक स्मिथ के तरीके को फॉलो नहीं किया। Who had hardly deigned to look at the stranger. He walked close up to him, looked him over very carefully, then tore off his slouch hat to get a better view of his face. वो उसके पास गया, उसको गौर से देखा और यही नहीं, फिर अपने जो है हैट का जो स्लाउच था उसको अलग किया और ताकि वो उसके चेहरे को अच्छे से देख सके। और जैसे ही उसने उसके चेहरे को देखा, he reminded of someone whom he knew.
उसके चेहरे को देख के पता नहीं कहाँ से उसके दिमाग में आया कि उसको जानता है। यस, और उसके मुंह से अनायास ही शब्द निकल पड़े, बट ऑफ कोर्स इट इज यू निल्स ओलोफ, हाउ यू डू लुक। उसको उसकी पहचान उसने किसी अपने ओल्ड कॉमरेड निल्स ओलोफ के रूप में की, और उसने कहा, अरे ये तुम हो, तुम कैसे दिखने लगे हो। अब जो वो आदमी था, द मैन with the rat traps had never before seen the Iron Master at Ramshaw. वो जो रेड ट्रैप्स था उसने इस आयरन मास्टर को कभी भी नहीं देखा, कभी उसके बारे में कुछ नहीं जानता वो। आई मीन मैटर ऑफ फैक्ट ये निल्स ओलोफ नहीं है, लेकिन आयरन मास्टर उसको निल्स ओलोफ के रूप में पहचान कर रहा है। अब अगर सही बात पूछे तो ये होती है कि भाई रैट ट्रैप को बता देना चाहिए कि आई एम सॉरी, मैं आपको नहीं जानता हूँ, लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं किया। मतलब ना तो वो आयरन मास्टर को जानता था एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वाज, उसको नहीं पता था कि उसका नाम क्या है। But it occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, he might perhaps throw him a couple of crore. ये इसे कहते हैं टेम्पटेशन। एक टेम्पटेशन वहाँ पे आया जब वो 30 करोड़ को देख करके चोरी करने का डिसीजन किया। अभी फिर वो गलती कर रहा है। अभी उसको ये लग रहा है कि शायद ये जेंटलमैन अगर उसको पहचानते हैं तो कोई बुराई नहीं है, हो सकता है उसकी स्थिति पे दया आ जाए उनको और उनको कुछ 1 करोड़ उसको गिफ्ट के रूप में मिल जाए। Therefore he did not want to undeceive him all at once, इसलिए वो उसको अनडिसीव करना नहीं चाहता था। यस, उसने इसलिए बहुत ही स्मार्टली उसने एक्सेप्ट किया। यस, गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउनहिल विद मी। हाँ, बस ईश्वर की मर्जी थी, हमारे साथ सब बुरा होता चला गया। यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट। आयरन मास्टर ने कहा कि तुम्हें रेजिमेंट से रिजाइन नहीं करना चाहिए था। दैट वॉज द मिस्टेक, इट वॉज योर मिस्टेक दैट यू रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट। तुम्हारी मिस्टेक थी कि तुमने रेजिमेंट से रिजाइन कर दिया। If only I had still been in the service at that time, I never would have happened. It never would have happened. अगर मैं उस समय जब ये सब कुछ हुआ, अगर मैं सर्विस में होता तो मैं ऐसा कुछ भी होने नहीं देता। Well, now of course you will come home with me. अब तुम हमारे साथ, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हो गया, छोड़ भूल जाओ। अब तुम मेरे साथ चलोगे हमारे घर। बाप रे, ये तो कभी सोचा नहीं था इसने। ये जो पेडलर था, द पेडलर हैड नेवर थॉट ऑफ इट। उसके दिमाग में कभी आया नहीं ये बात कि ये उसको अपने घर भी ले जाने की बात कर सकता है। टू गो अलॉन्ग अप टू मैनर हाउस एंड बी रिसीव्ड बाय द ओनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, दैट हाउएवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प। ये आइडिया कि ये हम इनके साथ जाएं और इनके रेजिमेंटल कॉमरेड के रूप में इनका ऑनर गेट करें, ये आइडिया ट्रैम्प को पसंद नहीं आया। नो, आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट। का नहीं, मैं ऐसा करने के बारे में सोच सकता भी नहीं हूँ। मीन्स आई कैन नॉट कम विथ यू। क्वाइट अलार्म था वो ये बोलते हुए। ही थॉट द 30 करोड़। अभी उसके दिमाग में वो 30 करोड़ आ रहे थे। टू गो अप टू द मैनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरली इनटू द लायंस डेन। उसने इस कंडीशन को लायंस डेन से कंपेयर किया कि वो जो है इसके साथ, आई मीन आयरन मास्टर के साथ मैनर हाउस में जाए। इसका मतलब वो अपनी इच्छा से अपने आप को लायन के डेन में फेंक दे रहा है।
He only wanted a chance to sleep here in the forge and then sneak away as inconspicuously as possible. He had only one desire. उसकी सिर्फ एक इच्छा थी कि वो उस यहाँ पे रात में ये सो जाए फौज में और सुबह यहाँ से निकल जाएगा बस. The Iron Master assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing. अभी आयरन मास्टर के दिमाग में एक बात आई कि हो सकता है भाई ये जो इंसान है इसकी क्लॉथिंग बड़ी मिजरेबल है, गरीब सा दिख रहा है, तो हो सकता है अपनी पुअर क्लॉथिंग के कारण ये थोड़ा सा एम्बेरस फील कर रहा हो. तो उसने ऑफर बताया उसने कि प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर. कहा नहीं आप ये मत सोचो भैया कि हमारा घर काफ़ी अच्छा है इसलिए आप इन कपड़ों में कैसे जाओगे. एलिजाबेथ इज डेड. एलिजाबेथ उसकी वाइफ वो ऑलरेडी पास अवे हो गई है. एज यू में ऑलरेडी हैव हर्ड, आपने सुना होगा कि एलिजाबेथ नहीं रही अब. माई बॉयज़ आर एब्रोड. हमारे जो लड़के हैं वो ऑलरेडी एब्रोड हैं, यहाँ नहीं है. एंड देयर इज़ नो वन एट होम. वहाँ घर पे कोई नहीं है एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ. मेरी सबसे ओल्ड डॉटर और मेरे अलावा कोई नहीं है वहाँ पर. वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड वी डिड नॉट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस. ये हम लोग ये बात ही कर रहे थे कि इस बार क्रिसमस पे हमारे पास कोई कंपनी नहीं है, कोई हमारे साथ रहने के लिए नहीं आ रहा है. नाउ कम अलॉन्ग विथ मी एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस वुड डिसअपीयर अ लिटिल फास्ट. तो वो उसको इनवाइट करता है क्रिसमस पे कि क्रिसमस तक हमारे साथ रहिए और हमें जो है होस्ट बनने का मौका दीजिए. आप देख सकते हैं जैसी कंपनी की नीड डॉक्टर को थी वैसी तो नहीं, लेकिन किसी न किसी और तरीके से कंपनी की नीड स्पेशली क्रिसमस एव पे या क्रिसमस के फेस्टिवल पे कोई उनके साथ गेस्ट नहीं है, ये नीड थी उनको कि कोई गेस्ट हो और उनको गेस्ट मिल गया. तो कंपनी की नीड यहाँ पे आयरन मास्टर और उसकी फैमिली उनकी बेटी को भी है. बट द स्ट्रेंजर सेड नो एंड अगेन नो. लेकिन स्ट्रेंजर ने किसी भी एंगल से इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया. उसने केवल एक बात कहा, नो. इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन स्टेल प्रेफर टू स्टे विद यू टुनाइट. सर्जन स्टॉर्म, ये जो है ब्लैक स्मिथ था, मास्टर ब्लैक स्मिथ था, उससे कहा कि लगता है कि कैप्टन वॉन स्टेल आप ही के साथ रहना प्रेफर करेंगे. और इसके बाद वो वहाँ से वापस चला गया. बट ही लाफ्ड हिमसेल्फ एज ही बेंट अवे. लेकिन जब वो वापस जा रहा था तो वो अपने आप में हंस रहा था. एंड द ब्लैक स्मिथ हु न्यू हिम, और ब्लैक स्मिथ जो कि उनको जानता था, अंडरस्टूड वेरी वेल दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड. वो समझ गया कि ये जो है आयरन मास्टर अपने अंतिम वर्ड्स को अभी नहीं बोल रहे. इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरेज व्हील्स आउटसाइड द फोर्ज. अभी आधे घंटे भी नहीं बीते होंगे तभी फोर्ज के बाहर कैरेज व्हील्स सुनाई पड़ी. एंड ए न्यू गेस्ट केम इन. और एक न्यू गेस्ट वहाँ आया. आई एम सॉरी, एक गेस्ट नहीं है, बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर. इस बार आयरन मास्टर नहीं आया था. तब कौन आया? ही हैड सेंट हिज डॉटर इन प्लेस ऑफ कमिंग हिमसेल्फ. इस बार उन्होंने अपनी बेटी को भेजा था, अपेरेंटली होपिंग दैट शी वुड हैव बेटर पावर्स ऑफ परसुएशन देन ही हिमसेल्फ. एंड ओवर हियर ये होप कर रहे थे, आई मीन आयरन मास्टर वॉज होपिंग दैट कि जो है उनकी बेटी में परसुएशन उनसे बेहतर है. दैट इज़ वाई ही हैज सेंट हर ओवर. सी इंटर्ड फॉलोड बाय अ वैलेट. उनके साथ एक वैलेट भी था. वो फौज में इंटर की, कैरिंग ऑन हिज आर्म अ बिग फर कोट. अपने
जो वैलेट था, वैलेट के जो है आर्म पे एक बड़ा सा फर कोट था। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रेटी, वो प्रेटी तो नहीं थी, आकर्षक नहीं थी, लेकिन हाँ ब्यूटीफुल थी, बट सीम मॉडेस्ट एंड क्वाइट शाई, काफ़ी मॉडेस्ट थी और शाई थी। इन द फोर्ज एवरीथिंग वो जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, फोर्ज की सेटिंग इस समय भी वैसी थी जैसे कि इवनिंग में थी जबकि आयरन मास्टर आए थे। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज apprentice still sat on their bench, and iron and charcoal still glowed in the furnace. The stranger had stretched himself out on the floor and lay with a piece of pea garden under his head and his hat pulled down over his eyes. So सब कुछ वैसा ही था। अभी जो वो ट्रैम्प था, ये रेड ट्रेवलर स्ट्रेंजर जो था, उसने अपने आप को स्ट्रेच कर लिया था क्योंकि थोड़ा गर्मी मिल गई थी उसके बॉडी को, और अपने सिर के नीचे पी गार्डन का एक टुकड़ा रख लिया था पिलो के लिए। एज सून एज द यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम, जैसे ही उस यंग गर्ल ने उसको देखा, शी वेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हैंड, वो उसके पास गई और उसका हैट ऊपर उठाया, जो कि उसने अपने आंखों के ऊपर डाल लिया था ताकि वो लाइट उसकी आंखों पर न पड़े और वो आसानी से सो सके। तो गई और उसके हेड को उठा लिया। द मैन वॉज एविडेंटली यूज्ड टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन। यस, दिस वॉज अ हैबिट ऑफ दिस मैन दैट ही यूज्ड स्लीपिंग विद वन आई ओपन। वो अपनी एक आंख खोल के स्लीपिंग किया करता था। He jumped up abruptly he jumped up and seemed to be quite frightened, और एकदम डरा हुआ था। यहाँ पे वन आई ओपन होने का मतलब है कि गहरी नींद में नहीं सोता था, उसको थोड़ा सा भी अगर डिस्टर्ब हुआ नहीं कि वो जग जाया करता था, क्योंकि ये उसकी शायद नीड थी, क्योंकि जहाँ कहीं भी वो सोता था इलीगल होता था। कभी पुलिस, कभी कोई तो कभी कोई, उसको हर समय जगाया ही करते थे, इसलिए वो कभी भी डीप स्लीप में जा ही नहीं पाता था। और जैसे ही वो जगाया गया, वो एब्रप्टली डर के मारे घबरा के जगा। तो इसने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। माय नेम इज़ एडला विल मैनसन, मेरा नाम एडला विल मैनसन है। My father came home and said that you want to sleep here in the porch tonight, and then I asked permission to come and bring you home to us. अब कि मेरे पिताजी अभी यहाँ पे आए थे और उन्होंने हमको बताया कि आप जो है यहाँ पे आज की रात यहाँ सोना चाहते हैं, और तब मैंने उनसे परमिशन मांगी कि जो है मैं आपको घर लेवा जाऊँ। आई एम सो सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम। और उसने कहा कि कैप्टन आई एम वेरी सॉरी कि आपको अपनी लाइफ में इतने मुश्किल के क्षण देखने पड़ रहे हैं। शी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली। अभी वो जिस तरीके से इसको देख रही थी उसमें एक कंपैशन था, विद हर हेवी आइज, एंड देन शी नोटिस दैट द मैन वाज एफ्रेड। अब मैंने कि हेवी आइज के साथ उसको देख रही थी, और अभी इस लेडी ने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो मैन है वो डरा हुआ है, ही इज एफ्रेड। और इस डर के केवल दो कारण हो सकते हैं, ईदर ही हैज स्टोलन समथिंग और एल्स ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम जेल। या तो इसने कुछ चोरी किया है और या तो ये जेल से भागा हुआ है। अब आप देख सकते हैं एडला विल मैनसन का ऑब्जर्वेशन कितना राइट है। शायद उसके अंदर एक बेटर अंडरस्टैंडिंग है फेस रीडिंग का, किसी को समझने का। इन दिस टाइम शी थॉट एंड एडेड, और तुरंत उसने ऐड किया, अगर वो चोरी करके भागा है या जेल से भागा है तो वो घर जाने के लिए डर रहा है, और उसका डर सिर्फ एक है
कि कहीं वो घर जाके फंस ना जाए, इसलिए उसने इसको अश्योर किया. दैट्स वाई शी एश्योर्ड हर बाय सेइंग यू मे बी श्योर कैप्टन दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज पेली एज यू केम. का आप तनिक भी टेंशन मत लीजिए, आपको जब जाना होगा हमारे घर से आप फ्रीली जब चाहेंगे आप जा सकेंगे. ओनली प्लीज स्टे विथ अस ओवर क्रिसमस ईव. हम आपसे सिर्फ क्रिसमस ईव तक अपने साथ रहने की लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं. और शी सेड दिस इन सच अ फ्रेंडली मैनर. ये बात उसने इतनी फ्रेंडली मैनर में कहा दैट द रैट ट्रैप पेडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर. कि वो रैट ट्रैप पेडलर को उस पे कॉन्फिडेंस भी हुआ. इट वुड नेवर हैव ऑकर्ड टू मी दैट यू वुड बॉदर विथ मी योरसेल्फ मिस. आई विल कम एट वंस. तो उसने वही कहा कि आई वुड नेवर हैव इट. ये हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपको मेरे साथ बॉदर करना पड़े. मैं चलता हूँ आपके साथ. ही एक्सेप्टेड द फर कोट. और उसने उसके जो वैलेट लेके आया था उस फर कोट को एक्सेप्ट किया. विच द वैलेट हैंडेड हिम विद अ डीप बो, थ्रू इट ओवर हिज रैग्स. और वो उसने अपने रैग्स के ऊपर ही पहन लिया. एंड फॉलोड द यंग लेडी और टू द कैरेज. और कैरेज के बाहर तक यंग लेडी को फॉलो किया. विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैकस्मिथ सो मच एज अ ग्लांस. अभी उसने ब्लैकस्मिथ की ओर एक निगाह भी नहीं देखा. बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस ही हैड एबल फॉरबिडिंग्स. लेकिन जब वो मैनर हाउस की ओर जा रहा था उसके दिमाग में एविल फॉरबिडिंग्स हो रही थी. फॉर द डेविल डिड आई टेक द फेलोज मनी. अभी उसका दिमाग इस बात से खराब हुआ रहा था कि आखिर उसने उस आदमी का पैसा क्यों चुराया. नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप. और अब मैं एक ट्रैप में फंस गया हूँ. एंड आई विल नेवर गेट आउट ऑफ इट. और मैं इस ट्रैप से बाहर नहीं निकल पाऊंगा. द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव. अगले दिन क्रिसमस ईव था. एंड वेन द आयरन मास्टर केम इन टू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट, और he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly. तो अभी वो डाइनिंग रूम में थे ब्रेकफास्ट करने के लिए और वो बोल रहे थे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लेश ऑन हिज बोन्स. उसने कहा पहली बात तो हमको ये देखना है कि उसके शरीर पे कुछ थोड़ा सा फ्लेश आ जाए, थोड़ा हेल्दी हो जाए. ही सेड टू हिज डॉटर हु वाज बिजी एट द टेबल. वो टेबल पे बिजी थी. एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट्स समथिंग एल्स टू डू दैन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रैट ट्रैप्स. और फिर उसने कहा कि उसके बाद हमें ये काम करना है कि इसके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था करना है कि ये जो रैट ट्रैप सेलिंग करता हुआ गांव-गांव घूमता है इसको ये काम ना करना पड़े. आई मीन उसको इस काम से भी निजात दिलाने की सोच रखता है. आई मीन जो ये आयरन मास्टर है, आयरन मास्टर हैज़ some good plans for this one of his old comrade. What happens next? We shall see in the further classes. By that, thank you. Have a nice day.